गुड ईवनिंग एवरीवन। गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 90 ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪਾर्ट 6 ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 100% ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ PSPCL ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਪਾर्ट 6 ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚੈਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। हमें पता है कि तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमें पता है कि तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आ गया था। ये भी गल याद रखो, अपना वक्त अपनी सही जगह लाओ और अपना मिशन पूरा हो गया तो दुनिया तुहाडे कोले खुद चल के आएगी, न कि तुहानू किसी नू कमेंट करके पूछना पएगा हाउ आर यू। राइट है, मेरी इन्हां गल्लां ते जरूर गौर करना है, अपना वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल पंजाब पटवारी ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ 100% ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ। ਇਹ कहना कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर है। मुख जबानी आप ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं। देखो सब तो पहला तो अगर जनरली मैं गल करा तो मैं मेरे सामने 4 ऑप्शनस हैं, मैनू पता है 16 है तो मैं 4 64 रूट बाई 3 ऑप्शन नंबर मैं चुपचाप डी टेक कर दांगा, मेरा आंसर हो गया। मैं किद्दां कीता, मैनू पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया हुंदा वो हुंदा 3/4 इंटू की हुंदा वा साइड स्केयर हुंदा है। मैं 3/4 करांगा इंटू की करांगा 16 इंटू 16 करांगा, मैनू कैंसल करांगा तो 16 चौकी कितना हो गया 64 रूट 3, ये साडा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 था पर टिक कर देंगे, गल होगी खत्म। राइट है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देता है कि इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल कितना 26 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। देखो इस ट्राइंगल का कोई भी नाम नहीं देता दोस्तों। अगर यह ट्रिपलेट है, अगर यह की है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब ये होंदा है कि अगर मतलब जिन्हां चों सब तो वड्डी साइड जिवें 26 है, 26 का स्केयर करांगे तो अपने कोल कितना होएगा 676 होएगा। 676 ਦੇ ਬਰਾਬਰ अगर 24 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 24 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 576 ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਦਰ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस होएगा, परपेंडिकुलर और बेस होएगा। किसी कभी भी तुम ट्रायंगल का एरिया कढोगे तो किसी भी एक साइड का अद्धा हिस्सा कर दो, मतलब 12 इंटू 10 कर दो, 120 आंसर आ गया। बिना पेन बिना पेपर आप आंसर करता।
चलिए हुण मैं तुहानूं समझा दिना भी किदां कीता मैं दोस्तों। ये की बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल बनेगा तो ए वाली साइड कितनी होगी 26 सेंटीमीटर होगी, 26 सेंटीमीटर है। दिस वन 24 है, दिस वन कितनी 10 है। किसी भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप करांगे की लिखांगे आप, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल करांगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल करांगे तो 1/2 बेस इंटू की होएगा हाइट होएगा। 1/2 बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितनी है 5, इनू कैंसल किया 2 तो 100 या लगभग 12 इंटू 10 करांगे तो अपने को कितना आएगा 120। तो ऑप्शन नंबर पहला विल बी राइट आंसर। दसो मेरा तरीका, मेरा मैथड तुहानू समझ आ रहा है तो बस लाइक और शेयर कर दो यार, बस इन्नी चीज़ है, होर नथिंग है। इदा ही लगभग एक मैं तुहानू अनाउंसमेंट कर दिना है कि टैलीग्राम दे विच असी अनसोल्ड पेपर सैट भेजांगे PDF जो मैंसूरेशन दे तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इदा ही PDF विद सोल्यूशन तुहानू मिलेगा, ये साडी वैबसाइट ते मिलेगा। राइट है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नैक्सट दे रखे है, इफ द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल 28 सेंटीमीटर है, ये कहता कि इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल कितना 2.5 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ऑप्शन दे रखे, चारां चो लगता ठीक है, जे नहीं है कोई आंसर तो तुसीं इहनूं कह सकते हो कि इन्हां चो कोई भी आंसर नहीं है। सिंपल जा फंडा है कि इत्थे सानू दे रखा कि सब तो पहला सानू ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है वो सानू की दे रखा, पैरामीटर दे रखे है। ठीक है, आप एक गल कर लेने सिंपल जे कंडीशन ते, एक ही मेरे को इदा करके एक ट्रायंगल हैगा या दोस्तों, ਇਹਦਾ आंसर मैं फाइंड कर चुके हैं। मैनू पता है कि ਇਹਦਾ आंसर इन्हां चारों ऑप्शनों चो नहीं है, बल्कि मैं जे इत्थे पंजवां ऑप्शन तुहानूं ई बना के दे देवां कि मेरे को इत्थे 35 है तो मैं कह दांगा 35 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर होएगा। क्यों? क्योंकि जे तुसी इंटैलीजेंट स्टूडेंट हो और जे तुसी रेगुलर मेरे स्टूडेंट हो तो तुहानूं मैं हर एक क्वेश्चन नूं डीप लैवल 'च समझा चुके हैं। बार बार मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं, ये पिछे भी एक रीजन है। रीजन ये हैगा आ कि जदों भी आप स्कूल दे विच किसी बच्चे को भेजते हैं तो उत्थे हमेशा टीचर की करता है, छोटे छोटे बच्चों को बोलेगा कि बेटा बार बार एक कंपीटीशन करते हैं, एक उत्थे क्विज की जाती है, कंपीटीशन किया जाता है कि ताकि बच्चों को हर एक छोटियां तो छोटियां चीज़ां बार बार रिपीट होण। ईवन कि जे आप सरकारी स्कूल की गल करते हैं तो अज तो कुछ टाइम पहला यानी बच्चों को खड़ा करके कहने बोलिया बेटा बोलो इदां करो यार, पहाड़े बोलो। एक बच्चा कहना सी 1 दूनी दूनी, दूजा कहना 2 दूनी 4, एक कहना सी 3 दूनी 6। मतलब वो चीज़ां अज भी जिसने पढ़िया आ वो चीज़ां याद है। राइट है, ये नहीं मैं कहांगा कि जिन्होंने अज नहीं पढ़िया उन्होंने नहीं याद है, बल्कि एक वो रिदम हुंदा सीगा, प्रैक्टिस हुंदी सीगी याद करवाउण दी। बहरहाल ये मेरियां चीज़ां इत्थे मैं सेम प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रहा कि जिन्ने भी तुसीं इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स हो प्लीज़ तुसीं अच्छे तरीके नाल इन्हां नूं याद करो। देखो सब तो पहली एक चीज़ है, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर जो परिमाप दिता जाता है ना, परिमाप होंदा तिन्ना भुजावां दा जोड़ कितना 28 सेंटीमीटर है। मैं इत्थे ऑलरेडी लिख चुकिया वां। हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि तुसीं इत्थे तिन्ना भुजावां दा जोड़ है। ट्रायंगल की कैटेगरीज तुहानूं 4 तरीके की समझा चुके मैं। हुण आपां ये नहीं कह सकते कि बई इत्थे अगर आप कर दी कि 28 इंटू 3 कर दिए, 28 इंटू 3 करांगे तो यदा मतलब है कि हर एक साइड की अगर आप कड्डांगे डायमेंशनस कड्डांगे, लेंथ कड्डांगे, हर एक साइड की लेंथ कड्डांगे तो इट मीनस यह की कहलाएगा, ये कहलाएगा सानू इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लीयर है? नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर 2 जो कि सानू किसी भी तरीके की इस लाइन च इक्विलैटरल बारे जिक्र नहीं किया। नंबर 2 करांगे। इस तो बाद है कि जिवें सानू अच्छे तरीके नाल पता है कि अगर आप पर्टिकुलर पेपर दे विच करांगे कि आप इत्थे लिखिया कि स्कैलन ट्रायंगल। हुण स्कैलन ट्रायंगल का मतलब हुंदा विषम बाहू, एक इहो जिहा त्रिभुज जिहदियां तिन्ने भुजावां बराबर नहीं हुंदियां दा मतलब ये हो गया कि अगर आप ट्रायंगल इदां दा बनाया आ और इनू मैं कहता 12 या ये 10 है मेरे को, और लाइक मैं ए कह देवां 8 है, तो आप इत्थे की करांगे यानी एस बराबर मैं लिख देवां कि A + B + C बटा 2 लिखांगे। यही करते हैं ना आप, मेरी गल समझ पा रहे हो ना। तो दरअसल है इत्थे है कि जे आप ये कह दिए कि भाई 8 और 12 + 10 बटे 2 है तो की ये बराबर 28 है। अगर इंज है तो दैट आपां नूं यह की करना पेगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं इंप्लीमेंट नहीं करना पेगा। तो आप इस नतीजे ते नहीं पहुंचे। इस तो बाद नतीजा नंबर आप लेने तीजा नंबर हो गया अपने आइसोसेल ट्रायंगल। भी आइसोसेल ट्रायंगल हैगा, इहदे विच की हुंदा है कि हमेशा अगर मैं छोटा जिहा डायग्राम बना के समझावां तुहानूं कि ABC एक ट्रायंगल है जिहदियां 2 भुजावां साइड बराबर हुंदी है, तीजी वक्री हुंदी है, तो आपां इत्थे इस नतीजे ते भी नहीं पहुंच सकते। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। सो दैट जदों भी सानू डायरैक्ट एक ट्रायंगल दे विच पैरामीटर दे के उहदी इन रेडियस दित्ती जावे और उत्थे सानू पुछा जावे कि ट्रायंगल दा एरिया की हुंदा है, तो तुहानू मैं इहो गल बार बार समझा चुके हैं कि तुसी याद रखियो दोस्तों, रेडियस बराबर हमेशा हुंदा है डेल्टा अपॉन S, और S का मतलब हुंदा है, याद रखो मेरी गल, कि सैमी पैरामीटर। ठीक है, की हुंदा है? सैमी पैरामीटर हुंदा है।
ठीक है। और इत्थे डेल्टा का मतलब की हुंदा है, डेल्टा का मतलब ही लिख देना है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। हुण देखो मैनूं गल दसो, आपां इत्थों फाइंड की करना, इत्थों आपां डेल्टा फाइंड करना, डेल्टा फाइंड करना तो की हो जाएगा आर इंटू एस हो जाएगा ना, आर इंटू एस हो जाएगा। आर सानू कितना गिवन है, आर सानू 2.5 गिवन, और एस का मतलब की हुंदा, एस मतलब यही हुंदा ना कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हुंदा है। भैया हुण 2.5 है इंटू इनू आपां 28/2 लिख दिंने, यही करांगे ना, क्योंकि अपने को जो वैल्यू गिवन है पैरामीटर, तो राइट आपां की लिखांगे 2.5 इंटू अपने को कितना हो जाएगा 14, 14 5 70 बच गया, 7 14 दूना 28 ते 7 हो गया 35। ऑप्शन नंबर आ लो जी, तुहाडा आंसर हो गया। ये ट्रिक नोट कर लो, अपने पल्ले बन लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर होएगा यार। ये चीज़ां बार बार मैं रिपीट करावांगा, बार बार रिवीजन करावांगा, तुहानूं याद आउणगीਆਂ। किसी भी बुक दे विच तुहानूं यह किते भी नहीं दिता होएगा, इस करके ये बहुत जरूरी है, राइट है। चलिए जे मैटर मेरा मैथड प्लैनिंग स्टैंडर्ड तुहानूं अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे लेवल दे है, साडा रिवीजन हो रहा है, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो, धुम्मा ठा दो, ठीक है। और याद रखो जे तुसी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट चाहुंदे हो, प्रैक्टिस लई मॉक टेस्ट चाहुंदे हो, मॉक टेस्ट प्लस ये संबंध दे विच पीडीएफ्स हो गए, ये संबंध दे विच तुहानूं ई बुक्स हो गईयां, ठीक है। साडी वैबसाइट विजिट करो www.gilgementor, याद रखो gilgementortest.com, इत्थे तुसी विजिट करो और तुहानूं सब मटीरियल इत्थे मिलेगा, और अपना टाइम रहंदे हुए प्लान सबसक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर चौथा आ कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड हुज पैरेलल साइड आर 20 एंड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस बिटवीन कितना है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैं तो आंसर कर चुके हैं, बट तुसी हुण किद्दां करोगे, देखो एरिया ऑफ जदों सानू डायरैक्ट पूछा जाए क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया हुंदा है 1/2, इत्थे हुंदा आ कि साडे कोल सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, मतलब आपां इत्थे लिखांगे कि सम ऑफ, तुसी लिख सकते हो इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल के बारे में समझा दिना है, पैरेलल साइड्स हो गया इनटू की हुंदा हाइट। देखो अगर मैं जनरली क्वेश्चन करा कि मेरे को इदा करके, मैं हालांकि समझा चुके तुहानूं सारियां बेसिक गल्लां, पर फिर भी मैं तुहानूं रिवीजन करावांगा कि ए बी सी डी मेरे को साइड है। हुण मैनूं गल दसो कि इहदियां पैरेलल साइड किहड़ियां, हुण इत्थों उसने की कीता ना, ये वाली तो होगी हाइट, इस हाइट नूं उन्होंने देता 15 आ, तो ये सानू 18 दे के ये सानू 20 देता, मतलब कि ओवरऑल पूरे दे पूरे जदों भी आपां एरिया फाइंड करना है तो पैरेलल मतलब आमने सामने दीयां साइडां दा जोड़ कर दो, 1/2 दोनों का जोड़ किया कितना हो जाएगा 38, और इंटू हाइट कितनी है 15, इनू 2 नाल कैंसल कर दो 19, 19 इंटू कितना कर दो 15, DDF ला दो या मल्टीप्लाई कर दो, DDF लाओगे 9 ते कितना हो गया 10 इंटू 15 आ, यदा मतलब 1 इंटू 5 करोगे, यही करोगे ना, बल्कि 5 ते 6 हो गया जरा, ठीक है। तो साढ़े को ऑप्शन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हुण इसे क्वेश्चन नूं आपां किद्दां कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हुण आंसर तुसीं की देख सकते हो, इत्थे तुसीं देखोगे कि 2 5 हो गया, 7 ते 9 9 दा बराबर 5 बचेगा, आंसर नहीं है। 8 ते 5 15, 10 ते 5 15 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। DDF नाल कर सकते हैं, अदरवाइज तुसीं 19 नूं 15 नाल मल्टीप्लाई कर लो, 285 आंसर आएगा, तद भी तुसीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड हुज बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों दो चीज़ां याद मैं थोड़ा इसलिए करवा रहा कि बेसिक भी साडा क्लीयर हो जाएगा और सानू कंसैप्ट भी याद हो जाएगा। एरिया हमेशा याद रखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हुंदा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुंदा है बेस इंटू हाइट हुंदा है, बेस इंटू हाइट होंगे तो बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 16, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 चौकी 64 पिछे चौका आएगा, ये पिछे 4 नहीं, ये पिछे 4 नहीं, ये पिछे 4 नहीं, पूरा करने की लोड़ नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मेरे मैथड्स ये ने, मैं इसे करके स्टूडेंट्स को कहना है कि थोड़ा अगर बेहतर PDF और टीचर्स के लैक्चर देखोगे तो तरीके और लॉजिक जरूर सीखोगे, ये बहुत जरूरी होंगे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां कि एरिया रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगल कितना 4/3 दे रखे, एरिया ऑफ रैक्टेंगल कितना दे रखे है सानू 6912 सेंटीमीटर स्केयर दे रखा वा। फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रैक्टेंगल, क्या बात है। तो मतलब क्वेश्चन सानू दे रखे है। सो इहो जे क्वेश्चन नू आपां बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिंपल जी तरीके नाल आपां आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपां गल करते हैं कि साडे कोल एक इदा रैक्टेंगल है और इस रैक्टेंगल का सानू की दे रखे, ए वाला दे रखे 4x और यह 3x। सब तो पहला आपां की करांगे, इत्थे सानू एरिया फाइंड करना है और एरिया का रूल की हुंदा है रैक्टेंगल का हुंदा कि बेस इंटू हाइट। एरिया आपां नू 6912 दे रखे और ये हो जाएगा साडे कोले 4x हो गया और इंटू कितना हो गया 3x हो गया। दोस्तों कितना हो गया वा 3x हो गया, ठीक है, और ये 3x हो गया। हुण आपां की करांगे 6912 इज इक्वल 3 चौके 12x स्केयर हो गया, 12 नाल इहनूं कैंसल कर दो भी 12 5 60 हो गया, 90 बच गया। तुसीं कह सकते हो कि 12 7 84,
12 7 कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 84 हो जाएगा। पिछे कितना बच गया तुहाडे कोले 7 72 12 6 72 बराबर कितना हो गया एक्स स्केयर। एक्स की स्केयर वैल्यू हटाओगे तो 576 का आ जाएगा रूट च आ जाएगा, तो मतलब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर एक्स वैल्यू होगी एक्स की। हुण एक्स की होगी तो साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 24 चौका 96 और ये हो गया 24 3 72, ये वाला हो गया इस पर्टिकुलर रैक्टेंगल की साइड एंड मतलब लेंथ इंटू ब्रैथ हो गया। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हुण आपां नूं की पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रैथ एंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਗੀ 72। ਸੈਕੰਡਲੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6912। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਏਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 18 ਚੌਕੀ 72, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 4 1 ਜਾਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ, 2 बच गए तो कितना हो गया 7 चौका 28, 1 बच गया 4 दूनी 8 ते 8 चौका 32। फिर हुण आपां 4 ना बल्कि 3 ना कैंसल कर सकते हैं। बाय द वे तुसीं 2 ना कैंसल कर लो जे तुहानूं इशू होंदा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो गया। फिर इहनूं देखो 3 ना कैंसल हो सकता है, तो 3 नाल कैंसल करन दी एक प्रोसीजर हुंदी है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट करके देख लो बई 8 ते 6 किन्ने है, 14 ते 4 किन्ने हुंदे ने 18, इहदा मतलब है 3 ते जा सकदा है। ईवन कि 9 ते भी जा सकदा है, 9 एकम 9 है, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 9 9 81 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਵਾ 81 ਬਰਾਬਰ 4 9 6 54, 1 ਰੇਸ਼ੀਓ 96 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, आई होप तुसी समझ पा रहे हो तो बस सैशन ਨੂੰ ਲਾਈਕ और शेयर करना ना भूलो ਤੇ कमेंट ਵਿੱਚ लिख दो आहो अच्छा है। ठीक है, बाकी इधर उधर अपने ध्यान ना भटकाया करो, बहुत जने अपना कंसंट्रेशन खराब करते हैं। कैंडीडेट्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि फोकस करके अपनी स्टडी कर लो, होर कुछ नहीं है, तुसी ध्यान ना भटकाया करो, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान बहुत इधर उधर जाता है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एज इट्स साइड इज 108 1/3% more than the area of a rectangle. If the parameter of the rectangle is 28 units and find the difference between the side of a particular rectangle. चलिए कितना सौखा और कितना वधिया क्वेश्चन है। कितना सौखा क्वेश्चन है, बहुते कहणगे ना जी बहुत औखा है। देखो ये इदां कह रहा सानू कि साडे कोले एक इदां करके एक रैक्टेंगल है, इस रैक्टेंगल की साइड होगी A B अते C अते D होगी। ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਫਾਰਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ x ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ x ਦਾ 108 1/3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन ए वाला हो गया। क्लीयर, मेरी गल समझ पा रहे हो ना की है ਇਹਦਾ एरिया। तो सिंपल जा फंडा ये हैगा आ कि अगर साडे कोले इस पर्टिकुलर रैक्टेंगल दा पैरामीटर 28 यूनिट्स हैं तो सानू डिफरेंस दसना हैगा की होएगा। तो आप एक काम करते हैं, सिंपल जी प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर देने हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। जे आप इस रैक्टेंगल की लेंथ ते ब्रेथ सानू गिवन है, चलिए बई चलिए तुसी किदां कर सकते हो। बेहतर यह होएगा कि इस क्वेश्चन नूं किवें कीता जा सकता है। इस क्वेश्चन नूं दो तरीके नाल कीता जा सकता है। पहला हालांकि थोड़ा जिहा क्वेश्चन समझना पएगा, सानू समझ के ही असीं कर सकते हैं, बिना समझे असीं नहीं कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। किन्ने स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं? यस नो दे विच मैनूं आंसर दो भी सारे असीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो तद ही आप इस क्वेश्चन के अगले नतीजे ते पहुँच सकांगे, अगले पड़ाव ते पहुँच सकांगे। अदरवाइज साडे लई डिफिकल्ट होएगा, ये पक्की गल है, यकीनी तौर पर मान लियो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश शाबाश। देखो दो चीज़ां हुंदियां कि जदों भी किसी भी तुसीं रैक्टेंगल दे डायगोनल, मैं तुहानूं की समझा रहा कि आपां इस पर्टिकुलर स्क्वायर नूं तद ही जान सकांगे जदों आपां इहदे डायगोनल नूं जाणांगे। हुण जदों भी किसी रैक्टेंगल दी डायगोनल दी लेंथ कढनी होवे तां तुसीं याद रखो कि इहनूं पाइथागोरस थ्योरम च ला सकदे हैं। भैया पाइथागोरस थ्योरम च किवें लावांगे? अगर सारियां चीज़ां भुल जाओ, मैं जिथे जिथे मार्कर चला रहा मेरे को इदां करके एक की है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक्स हो गया हाइपोटेनिस, ए हो गया बेस यानी डी सी हो गया बेस, ਅਤੇ बी सी हो गया साडे कोले परपेंडिकुलर हो गया। तो इत्थे आपां की करांगे? हाइपोटेनिस लावांगे। बई हाइपोटेनिस तो एक्स हो गया ना। हुण पूरे दे पूरे रैक्टेंगल दे विच एक्स की गल करांगे तो साडे कोले डायगोनल है। जदों भी डायगोनल फाइंड करना होवे तां लेंथ दी बल्कि
याद रखना L का स्केयर प्लस किदा हो जाएगा B का स्केयर हो जाएगा। इन्नी चीज़ सानू याद है, इन्नी चीज़ याद है। तो ये बराबर सानू कितना दे रखे, ये बराबर दे रखे उन्होंने 1 प्लस यानी 108 1/3% हो जाएगा, इन्ना ही हो जाएगा ना 1/3%। ओवरऑल की है ये L इंटू बी है। L इंटू बी में की लिखा है, क्योंकि किसी भी रैक्टेंगल का जो एरिया होंगे ना लेंथ इंटू ब्रेथ होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ का इन्ना गुणा हैगा आ। मेरी गल समझ पा रहे हो ना, की है X मतलब डायगोनल की साइड होगी। हुण आपां इसे क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा चेंज करते हैं, ये हो गया कि बल्कि 3 इंटू 3 ती कितना हो जाएगा गाइस 324 ते 1 325, तो 1 प्लस कितना हो गया 325 बटे कितना हो जाएगा 300। परसेंट आप हटा दें बई, परसेंट आप की कर दें हटा दें, या तुसी 1/100 भी लिख सकते हो। ये सारिया गल्लां तुहाडे ते डिपेंड करदियां। ते हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। हुण लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया तो बराबर तुसी की लिखोगे इत्थे, इत्थे यही लिख सकते हो कि इहदा हो गया तुहाडे कोल, इहनूं कैंसल करोगे 3 नाल कैंसल कर दो इहनूं, है ना 3 नाल कैंसल कर दोगे 300 इंटू 625 बटे 300 हो गया, 625 बटे 300 हो गया। तो तुसी ये कह सकते हो कि 1 बराबर ये हो गया 13 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 13 बटे 12 हो जाएगा। मैं डायरैक्ट भी कैंसल कर सकता, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 12 एकम 12 ते 13 कितना हो गया 25, 25 बटे 12 हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया तुहाडे कोले पर्टिकुलर इहदी वैल्यू निकल गई, इहदी वैल्यू निकल गई है। तो हुण आपां की करते हैं, इसनूं दूसरे तरीके नाल फिट कर लैने। थोड़ा जिहा मैनूं स्पेस चाहिए इत्थे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इस PPT दे विच स्पेस बना लेना है ताकि सानू प्रोपरली सारा समझ आ जाए। चलिए हुण सारा समझ पर्टिकुलर क्वेश्चन तद ही आएगा जे इत्थे आपां दो तरीके नाल क्वेश्चन रखते हैं। पहला तरीका साडे कोले हो गया कि लेंथ स्केयर प्लस कितना हो गया ब्रेथ स्केयर बराबर साडे कोले इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ थल्ले आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 25 बटे साडे कोले हो गया 12, 25 बटे कितना हो गया 12 हो गया। जे इनू तुसीं क्रॉस कर देंगे ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इन जिद्दां मर्जी तुसीं डिपेंड कर सकते हो, इनू इदां भी लिख सकते हो कि 12 इंटू लेंथ स्केयर प्लस तुहाडे कोले ब्रेथ स्केयर हो जाएगा, और इत्थे हो जाएगा तुहाडे कोले 25 लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण आपां की करते हैं 24 मतलब जो आपां नूं पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच इन्हां ने गिवन है कि इस पर्टिकुलर जो रैक्टेंगल है इहदा पैरामीटर कितना 28 यूनिट दे रखे हैं। कितने यूनिट दे रखे 28 यूनिट दे रखे हैं भैया। 28 यूनिट के बराबर अगर आप वैल्यू रखते हैं तो तद भी दा आंसर आ जाएगा, आंसर इत्थे आ जाएगा सिंपल जाए। ये तो हो गई लॉन्ग प्रोसीजर। लॉन्ग प्रोसीजर सानू किते ना किते टफ लगती है ना, हुण इहनूं आपां ईजी भी कर सकते हैं, बट पहले आपां इहनूं कंप्लीट कर दिंदे हैं। तो इत्थे अगर आप 12 रखांगे तो लेंथ स्केयर बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ स्केयर प्लस साडे कोले ब्रेथ स्केयर बराबर हो जाएगा दोस्तों बराबर आपां इत्थे कितना करना सी 24 LB करना सीगा, और बराबर इत्थे कितना करना सीगा 25 LB दे बराबर आपां 24 LB जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया 12 ते L स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर प्लस कितना हो गया 24 LB बराबर कितना हो गया 49 LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मुताबिक तुसीं आंसर फाइंड कर सकते हो ना इक्वेशन बना के, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्वेश्चन नूं आपां थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करना ही पएगा क्योंकि अदरवाइज कोई साडे कोले ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बहरहाल अज तुहानूं बेसिकली बार बार मैं चीज़ां रिपीट करांगा कि तुहानूं ये क्वेश्चनस शेयर किए जाएंगे, बल्कि PDF राहीं भी जिन्ने भी कैंडीडेट साडे नाल जुड़े ने जिन्हां ने पैकेजेस ईयर पर दे लै रखे ने उन्हां कोले भी क्वेश्चनस जाणगे। तुहानूं मैं बार बार यही चीज़ां रिपीट करांगा इस करके ताकि स्टूडेंट्स नूं इक्को प्लेटफॉर्म ते रेगूलर स्टडी करन दा मौका मिलेगा और तुसीं इक्को प्लेटफॉर्म ते अपनी जबरदस्त तरीके की तैयारी कर सकते हो। चलो किद्दां करना इस क्वेश्चन नूं वापस तो चीज़ां रिपीट करते हैं। बहरहाल सानूं ये चीज़ दस्सिया गया है कि ट्रायंगल का पैरामीटर है ना, मतलब कि पैरामीटर देखो इत्थे हुंदा है कि लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 28 दे रखा, तो आपां इहनूं 2 नाल कैंसल कर दिंदे तो साडे कोले कितना हो जाएगा 14, मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना हो गया 14। इक्वेशन नंबर पहला याद रखना है, इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। चलिए ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डायगोनल की लेंथ बराबर वैल्यू रखांगे तो साडे कोले जनरली एक मैथड जरूर आएगा, मैथड यही आएगा कि लेंथ स्केयर प्लस कितना ब्रेथ स्केयर बराबर आएगा साडे कोले 1 प्लस 108 सही 1/3%, ठीक है। और इंटू यानी मतलब यह होया कि किसी भी रैक्टेंगल के एरिए का, ठीक है, ये साडे कोले हो गया लेंथ स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर बराबर 1 प्लस साडे कोले कितना हो गया 325 बटे कितना हो गया 300, ठीक है। परसेंट में हटाता इंटू हो गया LB। इन्होंने आप कैंसल करांगे ना तो देखो 5 ते कैंसल करांगे तो कितना हो गया 60 5 300 और 65 5 325, इनू कर देने 13 5 65 तो 12 5 60 हो गया। L स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर बराबर साडे कोले हो जाएगा, इहदा अगर आप अपॉन 1 करके LCM लेवांगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 12, ये हो गया LB।
क्लीयर है। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12L² ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਥ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25LB। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, अगर साढ़े को a² + 2ab अगर इंज करके है तो सानू इस फॉर्म च बदलना पेगा। इस फॉर्म च बदलना पेगा तो मतलब ये हो गया कि इस वैल्यू की दुगनी वैल्यू इधर है, दुगनी वैल्यू इधर है। तो आप ये करते हैं कि आप लिख सकते हैं कि एडिंग, ठीक है, आप ये की जोड़िए एडिंग 24LB जोड़ दो ताकि इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा। मतलब ये बन गया कि 12² प्लस कितना हो गया b² प्लस साढ़े को 24LB और बराबर 24 इधर जोड़ देंगे तो मतलब LB + 24LB। क्लीयर है। तो मतलब ये हो गया 12L² प्लस इत्थे तुसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं बनाओगे तो यही चीज़ां तुहाडे कोल निकल के आउणगियां। b² प्लस तुहाडे कोल कितना है 24LB हो गया बराबर कितना हो गया 49LB हो गया। देखो प्रोसीजर मैथड समझ आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन दे विच तुसी डेफिनेटली डिफिकल्टी फेस करोगे। 12 कॉमन है ना, तो तुहाडे कोले यह कॉमन है। तो प्यारे दोस्तों L² प्लस तुहाडे कोले ब्रैथ स्क्वायर, ठीक है, प्लस तुहाडे कोले की है ब्रैथ स्क्वायर है और प्लस तुहाडे कोले हो जाएगा 2LB। 12 नाल कॉमन हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ना। चलिए बराबर कितना है 49LB है। इक्वेशन अपना खत्म हो गया, इत्थे जाके सवाल सारा खत्म हो गया। खत्म इंज हो गया कि यह पूरे का पूरा इक्वेशन है ए वाला फिट हो गया, ये वाला फिट हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं और 12 यदा मतलब हो गया L प्लस ब्रेथ दा होल स्क्वायर बराबर हो गया 49। हुण तुसीं मैनूं ये चीज़ दसो कि L + B की वैल्यू कितनी फाइंड की है 14। तो तुसीं इत्थे लिख दोगे 12 × 14। इस 14 का उपर की ला दोगे स्क्वायर ला दोगे, इस 14 के उपर स्क्वायर ला दोगे, स्क्वायर ला दोगे बराबर तुहाडे कोले कितना हो गया 49 हो गया, बराबर कितना हो गया 49 हो गया। हुण तुसीं की करना है 49 तुहाडे कोले LB है, जरा नोट डाउन करना है LB है, ठीक है। LB है तो मेरे शुभ चिंतकों ਇਹਦਾ आंसर फाइंड करना है, जरा आंसर फाइंड करना है। तो ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ वैल्यू ਨਾਲ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। देखो 14 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ तो ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 × 2 ਦਾ होल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 12। देखो 7 नाल जी कैंसल करोगे ना तो साढ़े कोले यह वैल्यू बराबर बराबर कैंसल हो जाएगी। अदरवाइज तुसीं ये भी लिख सकते हो कि 12 × 100 कितना 96 बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तुसीं इत्थे भी कैंसल कर सकते। दोस्तों इन्हूं कैंसल करांगे तो वी कैन से दैट कि 7 7 जा 49, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 नाल कट करांगे तो अपने कोले हो गया 4। मैं इसनूं इस तरीके नाल अच्छे तरीके नाल कह सकदा कि 12 चौका 48 बराबर LB होएगा। हुण तुसीं इस नतीजे ते पहुंच चुके हो भी अगर किसी भी रैक्टेंगल का, देखो रैक्टेंगल का पैरामीटर, सवाल नूं समझो जरा किन्ना है साडे कोले किन्ना गिवन है 28 है, ठीक है, और साडे कोले LB का मतलब एरिया किन्ना है 48। तो जनरली सानू एक मैथड समझ आएगा कि साडे कोले ये रैक्टेंगल है, इस रैक्टेंगल की एक लेंथ कितनी होएगी 8 होएगी, एक रैक्टेंगल कितनी होगी 6 होगी। अज्यूम भी असीं कर सकते हैं क्योंकि एरिया साडे कोले 48 है। तो यही अगर असीं इस फ्रेम दे विच रखांगे कि 6 + 8 कितना हो गया 14, तो 2 × 14 बराबर 28 है। साढ़े तो सवाल में यही पूछा गया सी इन्हां दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा साढ़े कोले डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन तुसीं किद्दां समझ सकते हो। जरूरी ये है इस तरीके के क्वेश्चन तुहानूं बहुत बार दिते जाणगे ताकि तुहानूं ये अभ्यास करन ते सारियां चीज़ां रिपीट हो जाणगियां। आई होप तुसीं समझ चुके होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। लेंथ ऑफ ए रैक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस एज इट्स ब्रेथ, मतलब कि प्लॉट की 3 गुणा ज़्यादा है इसकी ब्रेथ नालों। एरिया वो कहता रैक्टेंगुलर प्लॉट का कितना 867 सेंटीमीटर है, दैन द ब्रेथ ऑफ द रैक्टेंगुलर प्लॉट कितना होएगा। सिंपल जा क्वेश्चन है कि एक देखो अगर मैं जनरली गल करा कि साडे कोल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच 2 चीज़ां सानूं समझनियां पैणियां। अगर मान लो ब्रेथ साडे कोल x है तो साडे कोल लेंथ कितनी होएगी, लेंथ साडे कोल होएगी 3x होएगी, ठीक है। और एरिया कितना होंदा है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होंदा है, ब्रेथ इंटू लेंथ कर लो। ब्रेथ इंटू लेंथ बराबर कितना दे रखे 867 दे रखे, तो ये साडे कोले हो जाएगा 3 × कितना हो जाएगा x × 3 x हो जाएगा कितना 867 है, ये हो जाएगा 3x² बराबर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा। 3 ना कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 × 24, 2 बच गया 9 × 27। तो x² इज इक्वल कितना हो गया 289 हो गया। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। सो दैट कि x की वैल्यू 17 होगी, मतलब ये अगर 17 है तो ये 3 गुणा ज़्यादा 51 होएगी। इन्होंने कहा कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रैक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ कितनी होएगी तो 17 मीटर होएगी। दैट विल बी आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे समझ आ चुके हैं। चलिए
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਥ ਬਾਈ 200%। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਅਗਰ x ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੈਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ 200% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। 200% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਿਏ, अगर इन्नी चीज़ तुहानू समझ आ गई है तो चीज़ां तुसीं और भी आसान बना सकते हो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है। क्विकली कैंसल किए 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुसीं जनरली ये चीज़ कह सकते हो कि लेंथ प्लस 2 ब्रैथ बराबर कितना हो जाएगा, 3 ब्रैथ हो जाएगा। तुसीं ये भी कह सकते हो, किद्दां कह सकते हो, चलो ये भी आपां देख लैंदे हां। ये आपां किद्दां कह सकते हैं, सवाल नू समझना बहुत जरूरी है कि लेंथ बराबर कितना हो जाएगा। भी लेंथ साडे कोले x सीगी तो ये ब्रैथ कितनी होगी, कहना कि x का लगभग 200% ज़्यादा है, 200% ज़्यादा है। लेंथ बराबर एक्स ए होगी तो 2x a होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा साडे कोले, ये 2 × x हो जाएगा, तो लगभग साडे कोले कितना हो गया, 3x हो गया। ये चीज़ तुहानू समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज़ तुहानू समझनी बहुत जरूरी है। हुण एरिया ऑफ ए फ्लोर, एरिया ऑफ ए फ्लोर कहना भी 324 रुपए रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर, द रेट 3 रुपए पर मीटर है। अगर हुण आप 3 रुपए पर मीटर है तो आप जनरली इत्थे की लिखांगे, इत्थे आप लिखांगे कि एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 324 बटे कितना 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 108 मीटर हो गया। कितना हो गया, 108 मीटर हो गया ना। चलिए 108 मीटर स्क्वेयर हो गया। तो हुण आपां एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रैथ करांगे तो साडे कोले 108 बराबर कितना हो जाएगा। भी जनरली गल है सिंपल जाए, इसका पर्टिकुलर 1/3 हिस्सा हो जाएगा। भी 1/3 हो जाएगा तो 1/3 नाल आपां इहनूं कैंसल करांगे तो 18 बराबर भी आपां इहदी वैल्यू बना सकते हैं। नॉट इट बाई 3 यार, नॉट इट बाई 3, ओ माई गॉड, दैट इज़ माई मिसटेक, आई एग्री विद यू। मतलब की है कि लेंथ 3 गुणा ज़्यादा है, 3 गुणा ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रैथ बराबर 108 का 3 गुणा ज़्यादा, 108 का 3 गुणा ज़्यादा हो जाएगा। तो तुसी कह सकते हो कि 8 × 24 बराबर 324 हो गया। हुण 324 हो गया तो तुसी इस सवाल च की फाइंड करना है, तुसी इहदे च यही फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर दी लेंथ कितनी होएगी। तो उहदा बस तुसी की कर दो, तुहाडे कोले लेंथ इंटू ब्रैथ हुंदा ना, तो ब्रैथ बराबर तुहानूं वैल्यू गिवन है तो 324 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18। तो तुसी कह सकते हो ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वापस तो चीज़ां समझाउणा है, वापस तो कुछ चीज़ां समझा देना है। भी ये सवाल ये कहता है कि साडे कोले एक रैक्टेंगल है, अगर उहदी ए साइड मान लो भी 100 है तो 100 की 200 गुणा ज़्यादा है। हुण 100 की 200% ज़्यादा किवें होएगी, 100 × 200 बटा 100, 0 बराबर 0 कटिया गया तो 200 बराबर ए हो गया। बई 200 बराबर ए हो गया तो मतलब 100 तो सीगा तुहाडे कोल, 200 ए हो गया तो मतलब 2 ते कितना 200 के बराबर टोटल कितना हो गया 300। तो सो दैट कि मैं इत्थे लेंथ कितनी लाई है, 3x लाती। इत्थों तक चीज़ां क्लीयर है। हुण सवाल ये कहता है कि जब पेंट करना एक फ्लोर नूं, इहदे फ्लोर नूं पेंट करना है, वो 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो 1 रुपये आप गल करते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर आप जो फाइंड आउट करांगे कि उहदा एरिया फाइंड कर लांगे। भी 324 रुपये जरूरत है 3 रुपये स्क्वायर मीटर दी, तो एरिया कितना होएगा, तो 324 बटे 3 ला देंगे, बराबर 108 मीटर हो गया। 108 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, 108 मीटर स्क्वायर की हो गया, एरिया हो गया। हुण किसी भी रैक्टेंगल का एरिया की हुंदा, लेंथ इंटू ब्रैथ हुंदा है, लेंथ इंटू ब्रैथ हुंदा है। असी लेंथ साडे कोल कितना है कि 3x है, तो 3x बराबर ब्रैथ बराबर आप जो फाइंड करांगे तो इंटू 108 हो जाएगा, तो साडे कोले हो गया 324 मीटर। 324 मीटर साडे कोले पर्टिकुलर इस सवाल दे विच लेंथ स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक साइड की लेंथ कितनी होएगी, 18 होएगी। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द आंसर। थोड़ा जिहा अगला क्वेश्चन करांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10th है, सिंपल जा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेंगे हैं कि हाँ जी सर बहुत ज़्यादा 2 लाइनें खत्म हो जाएगा। ये कहना कि एन ऑर्डर वॉज प्लेस टू द सप्लाई ऑफ कारपेट हुज ब्रेथ एंड 6 मीटर एंड लेंथ कितनी है 144, 1.44 टाइम्स द ब्रेथ। देखो सवाल की है कि एक कारपेट का ऑर्डर दिता गया इदा करके, ठीक है। अगर साडे कोले यह 6 मीटर है तो 6 मीटर का 6 मीटर दिस इज 6 मीटर, तो ये 6 मीटर का कितना है 1.44 मीटर ज़्यादा आया। बस इन्नी चीज़ है। ये कहना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ एंड ब्रेथ 40% मोर देन 25% मोर देन रिस्पेक्टिवली देन द फर्स्ट कारपेट।
पहले जो कारपेट है ना ऊपर लिखा है, हुण इसे दा एक नवा इत्थे जो पर्टिकुलर गल करते हैं कि इसका एरिया बई देखो ये 6 है ना, 6 का मतलब 40% ज़्यादा हो जाएगा और यदा 6.144 इंटू यदा 125% ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए DDF ला देंगे यार, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कहना गिवन द रेशियो ऑफ कारपेट 45 रुपए स्क्वायर मीटर है, तो तुसी की दसना है, तुसी यही चीज़ दसनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर की होएगा। रेशियो दसना है आपां और पर्टिकुलर कॉस्ट दसनी है, ये दो चीज़ां साडे कोले फाइंड आउट हो जाणगीਆਂ। चलिए आप फाइंड कर दिए हुण आंसर। साडे कोले सिंपल जी गल है कि जे मैं इत्थे लेंथ देखा तो मैं यही चीज़ देखांगा कि 144 इंटू 6 बराबर करांगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 तो 2 कितना हो गया 26 तो 6 तो 2 कितना हो गया 8 मीटर हो गया। इतों गल क्लीयर है। बाकी साडे कोले ब्रैथ ऑलरेडी गिवन है, कितनी है साडे कोले 6 मीटर गिवन है। हुण आपां ले लैंदे हां सैकेंड की गल करते हैं, दूजा। ठीक है, जे आपां दूजा ले लैंदे कि एरिया ऑफ द सैकेंड कारपेट की गल करते हैं तो साडे कोले सैकेंड कारपेट की हो जाएगा 8.64 और साडे कोले हो गया 1 + 40/100 कर दो, चाहे तुसी डायरैक्ट उहदा जो मैं तुहानूं तरीका दस्सिया वो भी कर दो, कोई फर्क नहीं पएगा यार। लेंथ इंटू ब्रैथ ही तो हुंदा है ना, तो ये कर दो 6 इंटू इहदा हो गया तुसी 125/100 कर दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जे तुहानूं प्रॉब्लम लगदी है तो इहनूं ऐ कर दो, कितना हो जाएगा 7/5 हो गया, ये 25 125 25 चौका 100 ते कर दो 3/2 हो गया। तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसी किवें करना चाहुंदे हो। ये तुहाडे कोले हो गया 8.64 इंटू बटे 5 है और इंटू तुहाडे कोले हो गया 315 बल्कि 15/2 हो गया। आई थिंक मैनू लगता एवरीबडी इत्थों तक सारे समझ गए होंगे। चलिए इत्थों तक समझ गए हैं तो आप ये चीज़ फाइंड आउट करांगे कि इन्हां ओवरऑल जो सॉल्व आउट करांगे पूरे क्वेश्चन नूं तो साडे कोले नतीजा यही निकलेगा जाके कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 12.96 ठीक है 12.96 इंटू साडे कोले हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बराबर करांगे, ये साडे कोले स्क्वायर मीटर बराबर इहदी की आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। इत्थों तक क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। इत्थों तक सारे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मैनू प्लीज़ तुसीं दस सकते हो। ये बराबर मैं तुहानूं दस दिना कि जो मल्टीप्लाई करोगे तो 51.84 इंटू 1.4 मतलब 7 का अद्धा हिस्सा हो जाएगा 1.14 होंदा है और इंटू तुसी कर लोगे कि 5 × 15/4 बराबर तुसी वैल्यू जिवें मर्जी कर लो यार, जिद्दां मर्जी तुसी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अंत दे विच जाके आंसर मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर दी उन्होंने 45 दे रखा है तो इंटू तुसी 45 मल्टीप्लाई कर दो, DDF इंप्लीमेंट कर दो, DDF ना तुहाडा आंसर आ जाएगा। सारे स्टूडेंट दसो कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्विकली यार, क्विकली, शाबाश, कम ऑन गाइज। मल्टीप्लाई करने के हज़ारों तरीके ने, हज़ारों मैथड्स होंगे ने, ये तुसी आंसर दसना और आंसर इहदा कमेंट बॉक्स दे विच आएगा। ठीक है, सिंपल जिहा फंडा है और यही चीज़ां असीं आंसर फाइंड करनियां सी, होर कुछ भी फाइंड नहीं करना सीगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फेंस अराउंड द स्क्वायर प्लॉट विद द एरिया इक्वल टू द 289 स्क्वायर फीट इफ द प्राइस पर फुट ऑफ बिल्डिंग द फेंस कितने रुपए 58। ਇਹਦਾ आंसर कितना होएगा। चलिए देखो स्क्वायर की गल करते हैं तो साइड इंटू की होंदा है, साडे कोले साइड होंदा है 289 है तो अपने कोले x बराबर कितना हो जाएगा 17 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हुण लेंथ ऑफ देखो फेंस का मतलब होंदा है कंप्लीट तौर पर पूरी, ठीक है, कंप्लीट तौर पर पूरी की गल करते हैं। जे साडे कोले x ओदी एक दी बिल्डिंग की बराबर वैल्यू इत्थे 17 है, इहदी भी 17 है, इहदी भी 17 है, इहदी भी 17 है, तो मैं ये चीज़ कह सकता हाँ कि लेंथ नोट डाउन कर सकते हो, लेंथ ऑफ द फेंस बराबर पैरामीटर तुसी पंजाबी च लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द प्लॉट बराबर देखो कितना लिखांगे, इनू आप लिखांगे कि ए हो गया 4a बराबर कितना हो गया 68, ये लिखांगे ना आप 4a बराबर 68 हो गया। हुण जनरली एक चीज़ तुहाडे सामने निकल के ये आएगी मेरे दोस्तों कि 4a बराबर सानू कितना दे रखे, 4a बराबर सानू दे रखे कि 58, ये बराबर कितना दे रखे 58 दे रखे। और इसे क्वेश्चन नू जे मैं इदां सॉल्व आउट कर ला कोई दिक्कत नहीं है, 4a बराबर सानू वैल्यू इत्थे फाइंड आप कर चुके हैं। हुण इसे क्वेश्चन नू अगर मैं ओवरऑल ये कहंदा कि इफ द प्राइस ऑफ ए फेंस मतलब एक बराबर कितना है 68 इंटू 58 है, मल्टीप्लाई करन च कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसी कर सकते हो। अंत विच तुहाडे कोले 4 आएगा
ए ऑप्शन होएगा नहीं, ए ऑप्शन होएगा नहीं, या तो ऑप्शन नंबर पहला या कांट भी डिटरमाइन होएगा। इस नतीजे ते पहुंचने लिए तुसी DDF भी ला सकते हो। 6 ते 8 कितना 14 बराबर कितना हो गया 5 है, 5 ते 8 13 बराबर कितना 4 है, 5 चौका 20 बराबर यूनिट 2 वैल्यू आएगी। दोनों चेक कर लो, ये कटिया गया 7 कितना हो गया 8 ते 3 11 ते बराबर 2 बराबर हो गया थोड़े को ऑप्शन पहला, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जिहा प्रोसीजर सीगा। यही चीज़ तुहानूं दसी सी कि अगर स्क्वायर का एरिया इन्ना तो साइड कितनी होगी 17 होगी, पैरामीटर कितना हो गया 68 हो गया, उन्हें फैंस बराबर दे रखा कि 68 × 58 कर देंगे मल्टीप्लाई बराबर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल जे सिंपल क्वेश्चन नहीं है पटवारी दे, ये 15 क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पिक किए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 टाइम्स एरिया ऑफ, मतलब इन्ना इन्ना है भी अगर ये साडे कोले स्क्वायर है, ये साडे कोले 125 बल्कि रेक्टेंगल है, ये साडे कोले 64 है, इन्हां दा एरिया फाइंड कर लेने हैं। ये कहना कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का 5 गुणा ज़्यादा आ, यही चीज़ होएगी ना। तो आप इत्थे देयरफॉर ये चीज़ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड बराबर 5 गुणा कितना हो जाएगा 125 × 64, यही चीज़ लिखांगे ना आप, यही चीज़ लिखांगे ना। तो ये हो गया साढ़े को भी साइड अगर आप स्क्वायर की इदा करते हैं भी x/x मानते तो एक्स स्केयर कर सकते हैं, एस स्केयर कर सकते हो, तो पूरी की पूरी वैल्यू काहदे च आ जाएगी जे आप x की वैल्यू फाइंड करांगे तो ये आप लिख देंगे 5 इंटू तो 25 × 25 125 और इंटू कितना हो जाएगा 64। ये 2 5 चो 1 5 बाहर आ गया, 25 चो 5 बाहर आ गया, 8 बाहर आ गया, कितना हो गया 25 8 कितना होंगे 200, तुहाडे कोले कितना आ गया साइड आ गई बई 200 साइड आ गई। हुण तुसी पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर कितना होंगे 200 × 4 बराबर 800 आंसर हो जाएगा। स्क्वायर की साइड यही होएगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मैनू कमेंट करके दसो सारे स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा जिहा स्पीड नू तेज किया है इस करके कि असीं हर एक क्वेश्चन नू अपने माइंड ते जोर पा के भी कर सकते हैं, अपनी अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए यार। देखो स्क्वायर का एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया हैगा उहदा 5 गुणा ज़्यादा रेक्टेंगल का एरिया है। बई रेक्टेंगल का एरिया आपां नूं मल्टीप्लाई करन दी लोड़ नहीं है। इत्थे देखो आप एस बराबर फाइंड करांगे, एस तुसीं लै लो, एस साइड बराबर ले लोगे। हुण साइड बराबर तुहाडे कोल ए है तो जो स्केयर हटाओगे तो सामने रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मैं 125 के फैक्टर बना ले, 25 × 125 × 5 कर लिया, इंटू 64 हो गया। तो 5 × 5 बराबर तुहाडे कोल देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर जाके यही होएगा ना, फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो तो साइड बराबर तुहाडे कोल कितना आ गया 200 आ जाएगा, तुहाडा आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए वायर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए सर्कल रेडियस कितना 3.5 इट बेंड टू द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, एंड हुज लेंथ एंड ब्रेथ ए रेशियो इन्ना फला करके इदा करके व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान अते बड़ा ही रिदम प्यारा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो मेरे को एक पूरी तार है, उस तार नूं मैं की कर देना एक बेंड करके की बना देना, मैं सर्कल बना देना और इस पर्टिकुलर सर्कल की जो रेडियस है ना वो 3.5 है। वो कहता कि बेंड करके फिर उसनूं बनाया जाता है एक रेक्टेंगुलर और पूरे का पूरा मतलब बेसिकली की है कि थोड़े कोले उसका एरिया रेशियो दे रखा है इत्थे साइड का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही होएगा ना, क्योंकि तार नूं जदों तुसीं मोड़ोगे तो पूरा एक तुहाडे कोले सर्कल बन गया और इसे तार नूं मोड़ोगे तो तुहाडे कोले पूरी तार ए कवर होगी। तो मतलब ये हो गया कि इहदा पैरामीटर और इहदा पैरामीटर दोनों की है बराबर है, ठीक है। हुण इहदा पैरामीटर हुंदा 2πr और इहदा हुंदा कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ ए वाला हुंदा है। इत्थों तक चीज़ां समझ लेनियां सारे स्टूडेंट्स ने। चलिए मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं दूजे तरीके नाल करदा हां कि सानू इत्थे रेशियो दे रखा कितना है 6/5 दे रखा, 6/5 दे रखा है, तो जनरली इस क्वेश्चन नूं दो तरीके नाल कीता जा सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन नूं ऐ करां कि लेंथ मेरे कोले कितनी है 6x है अते मैं कहां कि मेरे कोले ब्रेथ कितनी हो जाएगी, मैं ये गल कह सकदा कि मेरे कोले 5x हो जाएगी, ठीक है 5x हो जाएगी। तो मैं जनरली इस क्वेश्चन नूं ये भी कह सकदा है कि पैरामीटर बराबर कितना हो जाएगा 2 × 6x + 5x बराबर तुसीं कह सकते हो कि 11 × 22x, ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट दस दो मैनू इत्थों तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण अगर ये बराबर है तो बस तुसीं आंसर फाइंड कर दो। भैया आंसर फाइंड करने च किसी को कोई दिक्कत है? जनरली मैनू क्विकली दस दो, जल्दी जल्दी आंसर दस दो। आंसर अपना आ चुके हैं, स्टूडेंट्स का इंतजार है मैनू। हाँ जी, हुण आपां इत्थे की लिखांगे 2πr बराबर 2, देखो ये तो आप फाइंड कर ही लिया 22x हो गया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 × 22/7 ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22x ਹੈ, ਤਾਂ 22 ਨਾਲ 22 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਟਾ 10 ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 5 35 ਔਰ 5 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ 10 ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ a ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਔਰ a ਸੀਗਾ 6x ਸੀਗਾ, ਬਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੇਥ, 6 × 5 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ए ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 4096 ਹੈ। and the ratio breadth and length rectangle whose twice is the side of a square breadth कितना 24 centimeter less than the side of the square। चलिए सब तो पहला स्क्वायर दा एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर साडे कोले कितना दे रखा है, बल्कि साइड इंटू की हुंदा है, साइड इंटू साइड स्केयर है, ये दे रखा है 4096 बराबर साडे कोले हो गया एस स्केयर, और एस स्केयर हटावांगे तो 4096 कदे च आ जाएंगे, रूट च है। एस बराबर तो साडे कोले कितना हो जाएगा 16 बराबर एस। चलिए इतों तक सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया। हुण ये कहता कि रैक्टेंगुलर शेप ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप चेंज करते हैं ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਥ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਲੈਂਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਵਾਈਸ ਹੈ, ਬਈ ਟਵਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ 2x ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x ਹੈ, ठीक है। बाय द वे मैं चेंज करता थोड़ा समझ लियो। एंड ये कहता कि उसकी ब्रैथ है ना 24 लैस है, तो सानू ये तरीके नाल अच्छे तरीके नाल पता आ कि लेंथ इंटू ब्रैथ बराबर होंदियां स्क्वायर दे विच, ठीक है। तो ये साडे कोले हो जाएगा, अगर ये भी x है तो x नालों 24 घट है, तो अपने कोले ब्रैथ बराबर आपां कितना लिख देंगे x - 24 लिख देंगे। बस यही साडा आंसर सीगा, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना दोनों दा तुसीं रेशियो दस दो, ठीक है। रेशियो करा दसना, आप लेंथ इंटू ब्रैथ का दसना। ये साडे कोले कितना है 2x है बराबर x माइनस कितना 24 है, कितना 24 है। तो हुण आपां नूं जनरली इहदे बराबर वैल्यू पुट कर देनी है, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, क्विक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी दसो जी। बिल्कुल मैं कमेंट हुण चेक किया है, सारे कहंदे सर जी 64 का स्केयर होएगा ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 16 की क्यूब है, 64 का स्केयर होएगा। ओके 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 ओके, वेरी गुड, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, आई एग्री विद यू, ठीक है। ये कहती जी तुसीं ये स्क्वायर की साइड देखो, मैं पूरा क्वेश्चन वापस तो कवर कराना है दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन वापस तो कवर करते हैं। आपां नूं इत्थे दो कंडीशन दित्तियां गईयां। सब तो पहली कंडीशन आपां दित्ती गई कि स्क्वायर का एरिया, तो आपां इत्थे की लिखांगे कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर कितना है 4096 है, तो अपने कोले कितना हुंदा है कि साइड इंटू साइड बराबर कितना है 4096 है, तो आप साइड बराबर करांगे तो अपने कोले की वैल्यू निकलेगी 64 निकलेगी। क्लीयर है, साडे कोले एक स्क्वायर हैगा, ये साडे कोले 64 है, ये भी साडे कोले 64 है, ठीक है। स्क्वायर शेप दे विच आपां जनरली सवाल समझ सकते हैं। ये कहता कि जिहड़ा रैक्टेंगुलर बनया इस तो ਉਹਦੀ से ना 64 तो लैस है, मतलब दुगना है, तो 64 दूना कितना हो जाएगा, ਉਹਦੀ साइड कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 128 है, और ब्रैथ कितनी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ है तो 40 है। दोनों का रेशियो दस दो, तो 40 बराबर 128 कैंसल कर दो, ਉਹਨੂੰ किन्ना किन्ने ते कट्टिया जाएगा 4 ते कट्टिया जाएगा, 10 चौका 40, 4 तीए 12 ते 4 दूनी 8, 5 बराबर कट दो, किन्ना हो गया तुहाडे कोले 5, और इधर हो गया तुहाडे कोले एक साइड ते, हाँ जी गाइस किन्ना हो जाएगा 5, और इधर हो गया तुहाडे कोले 16। आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक साइड कहना रैक्टेंगल की लेंथ है ना वो दुगनी है, और दूजी साइड ब्रैथ हैगी वो 24 घट है, 24 घट है तो 40 ब्रैथ हो जाएगा। दोनों का रेशियो दस दो, ये साडे कोले ब्रैथ हो गया, ये साडे कोले लेंथ हो गया, ये साडे कोले कितना 10 चौका 40, 4 टाइम कैंसल हो गया 32, ये 5 बराबर 16 हो जाएगा। तो 5/16 ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ई कह सकते हैं, विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल, तब तक ख्याल रखो।